नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने दूसरी मियाद के लिए मुंतखब होने वाली बीजेपी हुकूमत का बजट साल 2019 और 20 पेश कर दिया। लोकसभा में बरसर-ए-इक़्तिदार अरकान की जानिब से बार बार मेज थपथपाने के दौरान 2 घंटों से जायद की बजट तकरीर में निर्मला सीतारामन ने बताया कि बजट में समाज के तमाम तबकात, नौजवानों, खवातीन, छोटी सनतों, बैंकिंग इदारों और वजीफेयाब अफराद का ख्याल रखा गया है। उन्होंने ऐलान किया कि बजट हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की मईशत के निशाने को छूने में माविन साबित होगा। स्टार्टअप स्कीम पर ज्यादा तवज्जो दी गई है और उनके लिए कई तरगीबात देने का ऐलान किया। वजीर फाइनेंस ने पेट्रोल और डीजल के टैक्सों में 1 रुपये के इजाफे, सोने पर टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12% कर देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की रकम फराहम करने का भी मंसूबा बताया ताकि बैंकों के कैपिटल और क्रेडिट देने की ताकत में इजाफा हो सके। उन्होंने बताया कि 2 करोड़, 5 करोड़ और उससे ज्यादा रकम बैंकों से निकालने वालों को सरचार्ज अदा करना होगा। नए बजट में इनकम टैक्स के ढांचे में कोई तब्दीली नहीं की गई। ताहम बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स असेसमेंट का तरीका अब नया शुरू किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने बताया कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नए सिक्के मार्केट में लाए जाएंगे। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल इस साल फरवरी में उस वक्त के वज़ीर फाइनेंस पीयूष गोयल ने अबूरी बजट पेश किया था। पार्लियामेंट में ब्रीफ केस के साथ दाखिल होने की कदीम और बरतानवी रिवायत को तोड़ते हुए वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने इस बार एक छोटा सा बैग लेकर दाखिल हुई। लोकसभा अरकान से खचाखच भरा हुआ था। Financial gains from cleaning of the banking system are now amply visible. NPAs, meaning non-performing assets of commercial banks, have reduced by over 1 lakh crore over the last year. Record recovery of over 4 lakh crore due to IBC and other measures has been effected in the last 4 years. Provision coverage ratio is now at its highest in 7 years, and domestic credit growth has risen by 13.8%. Government has smoothly carried out consolidation, reducing the number of public sector banks by 8. Government has smoothly carried out consolidation, reducing the number of public sector banks by 8. At the same time, as many as 6 public sector banks have been enabled to come out of prompt corrective action framework. We have enabled 6 public sector banks to come out of that situation. Having addressed the legacy issues, public sector banks are now proposed to be further provided 70,000 crores of rupees capital to boost credit for a strong impetus to the economy. 70,000 crores of rupees will be provided in order that capital will be boosted so that credit can be improved. To further improve ease of living, they will leverage technology, offering online personal loans, doorstep banking, and enabling customers of one public sector bank to access services across all public sector banks and so on. In addition, government will initiate steps to empower account holders to remedy the current situation in which they do not have control over deposits of cash by others into their accounts. There is an issue now. Unknowing to them, there are money being deposited into accounts, and that is creating a lot of problems for customers. So we will be addressing that also. We will initiate steps to address that problem. Reforms will also be undertaken to strengthen governance in public sector banks. Non-banking financial companies are playing an extremely important role in sustaining consumption demand as well as capital formation in small and medium industrial segment. NBFCs that are fundamentally sound should continue to get funding from banks and mutual funds without being unduly risk-averse. For purchase of high-rated pooled assets of financially sound NBFCs,
amounting to a total of 1 lakh crore rupees during the current financial year, government will provide one-time 6 months partial credit guarantee to public sector banks for the first loss of up to 10%. I shall read this again. For the purchase of high-rated pooled assets of financially sound NBFCs amounting to a total of 1 lakh crores of rupees during the current financial year, government will provide one-time 6 months partial credit guarantee to public sector banks for first loss up to 10%. Further, Reserve Bank of India is the regulator of the NBFCs. However, RBI has limited regulatory authority over NBFCs. Appropriate proposals for strengthening the regulatory authority of RBI over NBFCs are being placed in the finance bill. NBFCs which do public placement of debt have to maintain a debenture redemption reserve. And in addition, a special reserve as required by RBI has also to be maintained. To allow NBFCs to raise funds in public issues, the requirement of creating a DRR, that is a debenture redemption reserve, which is currently applicable for only public issues as private placements are exempt, this will be done away with. To bring more participants, especially NBFCs, not registered as NBFCs. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2019 और 20 के बजट को नए हिंदुस्तान की सिमत एक संग मेल से ताबीर किया। उन्होंने बताया कि मुल्क के ज़राई शोबे को तरक्की देने का एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। कौम के नाम नशर करदा एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी में हम कदम रखने जा रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि हिंदुस्तान की मईशत को 5 ट्रिलियन तक पहुँचाने का उनका ख्वाब अब पूरा हो सकेगा। निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को मैं सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है। आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है। आज लोगों के जीवन में
नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है। ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है। ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा। ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा। पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने में, एम्पावर करने के लिए अनेकविध कदम उठाए। अब अगले 5 वर्षों में यही एम्पावरमेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि $5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी। बजट में कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड़ 87,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हो या 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO का संकल्प, मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रिड की स्थापना, ये योजनाएं वर्ष 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने से गांव में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। जनशक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है। जल संचय जन आंदोलन की भावना से ही हो सकता है। इस बजट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ी की चिंता साफ साफ नजर आती है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर घर जल का अभियान देश को जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा। बजट में लिए गए फैसले अगले दशक की नींव मजबूत करने के साथ ही नौजवानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। ये बजट आपकी अपेक्षाओं का, आपके सपनों का, आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं कल काशी में इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने वाला हूं, लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत के सभी नागरिकों को उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत डंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में बहादुरपल्ली और इंदिरामा कॉलोनी में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर जोन पद्मजा ने मीडिया को बताया कि 32 टू व्हीलर्स, 5 ऑटोस, 2 कारों को जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि इलाके में CCTV कैमरे नस्ब किए जाने के बाद गैर समाजी अनासर की सरगर्मियों पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है। ACP पेट बशीराबाद नरसिम्हा राव ने कार्डन सर्च की निगरानी की, जिसमें 5 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 9 सब इंस्पेक्टरों, 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स समेत 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो,
लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप इनकम टैक्स हुक्काम ने माई होम ग्रुप के सदनशीन जुपली, रामेश्वरराव के दफातर और रहायश गाँव पर आज भी धावों का सिलसिला जारी रखा। 100 से ज्यादा इनकम टैक्स अहदेदारों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टीमों ने हाईटेक सिटी में वाक़े माई होम ग्रुप के दफ्तर और बंजारा हिल के नंदी नगर में उनकी रिहायशगाह पर धावे किए। रामेश्वर उस वक्त अखबारात की सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश के खिलाफ बद इंतजामी, खुर्द-बुर्द और जालसाजी की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इनकम टैक्स हुक्काम ने धावों से मुतालिक तफसीलात बताने से गुरेज किया, ताहम कहा कि अहम दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जा रही है। हजरत सैयद निजामुद्दीन जिलानी अलमारूफ हकीम शाह बाबा अलैहिर्रहमा के उर्स के सिलसिले में उर्स कमेटी की तरफ से 5 गरीब लड़कियों की शादियां की गईं। मजलिस सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहियुद्दीन की निगरानी में इन शादियों का इंतजाम किया गया था। दरगाह कमेटी के सदर फैयाज खालिदी और नंदन नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने उस तकारीब के इंतजाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये बताना ज़रूरी होगा कि शहर के मगरबी हिस्से में वाक़ हकीमपेट इलाका आपके नाम गिरामी से ही मौसूम है। निजामुद्दीन के नाम से साल जो 3 तारीख और 4 तारीख 5 तारीख सिंगल और आज के दिन जो था नाबालिग लड़कियों की शादियों का इंतजाम किया गया। जो पिछले करीब 22 साल से लगातार इस कमेटी के जिम्मेदार यहाँ पर साल शादियों का इंतजाम किया जाता है और शादियों के साथ में इसी दिन तमाम लड़की को लड़के को तमाम सामान के साथ भी दिया जाता है। और मैं यहाँ पर तेजी आए हुए शायरी का और ख़ास तौर से कमेटी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह मीडिया के जरिए तमाम लोग से ऐलान भी करता हूँ कि आइंदा साल के लिए भी आप अपने आसपास में या आपके बस्तियों के अंदर या आपके रिश्तेदार अहबाब में जो भी है यहाँ पर हकीमपेट कमेटी के पास आकर अपने नाम को रखें। इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इस साल मुस्तकिल किया जाए। इंशाअल्लाह इससे बड़े पैमाने पे आने वाले साल को इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ के जितने भी शायरी में और जो भी जिम्मेदार हैं तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का और जमात के तमाम सदरमुंदी और तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर जो दरगाह शरीफ का जो कई साल से ज़मीन का जो कोर्ट के अंदर केस लड़ा जा रहा है उसकी निगरानी जनाब अभी भी साथी के निगरानी में हाई कोर्ट के अंदर नौकर अपनी मेरे निगरानी में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वही तमाम संवाद केस को कामयाबी करना की कमेटी की तरफ और निगरानी से इस कोर्ट केस को इंशाअल्लाह फिर एक बार यहाँ पर आ रहे तमाम गाड़ी का कमेटी के जिम्मेदारों का और खास तौर से का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
संजाड़ी नगर के इलाके में एक होटल से एक शख्स की नाश दस्तियाब हुई, जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हालत में पाया गया। बताया जाता है कि मेदक से ताल्लुक रखने वाला नरेश और गुंटूर के श्रीकांत ने 2 जुलाई को क्रिश इन लॉज में एक कमरा हासिल किया था। कल रात लॉज के मैनेजर ने रूम को फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। चुनाचे उसने मास्टर की से रूम खोला तो श्रीकांत मुर्दा पाया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया हो या फिर खुदकशी कर ली है। श्रीकांत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि नरेश को करीबी दवाखाने में शरीक करवाया गया है। आगे की तहकीकात जारी हैं। ఎస్ఆర్ నగర్లోని క్రిస్ ఇన్ లాడ్జ్లో శ్రీకాంత్ రెడ్డి మరి డి నరేష్ అనే ఇద్దరు యువకులు ఈవినింగ్ ఈ హోటల్లో చెక్ ఇన్ కావడం జరిగింది। తర్వాత నిన్న కూడా ఈవినింగ్ 5 o'clock వాళ్ళు బయటికి పోయి లోపలికి రాగా ఈ హౌస్ కీపింగ్ బాయ్ చూడడం జరిగింది। దాని తర్వాత ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి డోర్ తీయకపోయేసరికి వీళ్ళు ఇవాళ చెక్అవుట్ చేయాల్సి ఉండే, అందుకే వీళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు మాస్టర్ కీ పెట్టి అది ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక అతను పూల్ ఆఫ్ బ్లడ్లో బాత్రూంలో పడి ఉన్నాడు, ఇంకొక అతను కూడా అన్కాన్షియస్గా ఇంజురీస్ తోటి సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ ఇంజురీస్ తోటి పడి ఉన్నాడు। సో అతను ఇమీడియట్గా మనం ప్రైమ్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ చనిపోయిన అతని పేరు మనకు రికార్డు పరంగా ఇక్కడ రాసిన దాని ప్రకారంగా అతని దగ్గర దొరికిన దాని ప్రకారంగా శ్రీకాంత్ రెడ్డి గుంటూరు అని ఉంది। మరి ఈ నరేష్ అనే వ్యక్తిది మెదక్, డి నరేష్ మెదక్ అని ఉంది। వీళ్ళు ఎందుకు ఈ విధంగా చేసింది అనేది మనకు పరిశోధన తెలుస్తుంది। అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడే తెలియదు, డీటెయిల్స్ చూసుకున్నాక మళ్ళీ చెప్తాను। నరేష్ ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతం నార్మల్గానే ఉందని చెప్తున్నారు, స్టేబుల్గా ఉందని చెప్పారు డాక్టర్। వెళ్తున్నాం అంటే अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज का 10वां तरबियती कैंप इतवार 7 जुलाई को मीनार गार्डन नया पुल पर मुनक्किद होगा। हज कमेटी के प्रेस नोट के मुताबिक सदर नशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान सदारत करेंगे। इस कैंप से मुमताज़ उलमा इकराम के अलावा हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दूसरे भी मुखातिब करेंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा इंतजाम रहेगा। महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से कृष्णा वानी स्कूल नागौल में एक तकरीब मुनक्किद हुई और बच्चों ने एक रैली भी निकाली। गांधी ग्लोबल फैमिली और गांधी ज्ञान प्रस्थान ने इस प्रोग्राम में ताउन किया था। सदरनशीन कृष्णावेणी ग्रुप श्रीनिवास ने सदारत की, जबकि मुकामी कारपोरेटर संगीता प्रशांत गौड़ मेहमान खुसूसी थी। इस स्कूल में 300 से ज़्यादा तलबा तालिबात हैं। स्कूली तलबा ने गांधी जी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। 150వ గాంధీ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా మా కృష్ణవేణి టాలెంట్ స్కూల్లో 300 విద్యార్థులతో గాంధీ వేషధారణతో గాంధీ అభిన ర్యాలీని నిర్వహించాము। ఆ గాంధీ గారి ఆదర్శాలని, ఆయన అభిప్రాయాలని, ఆశయాలని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, ప్రజలకు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మా చిన్నారులలో ముందుగా ఆశయభావాన్ని కలిగించేసేసి ఒక భారీ ఎత్తున ర్యాలీని నిర్వహించాము గాంధీ గ్లోబల్ ఫ్యామిలీతో కలిసి। వాళ్ళు మా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఎంతో మా స్కూల్ యాజమాన్యం తరఫున వాళ్ళకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। मलकपेट पुलिस ने कम उम्र लड़के को गिरफ्तार करके उसके पास से 16 बाइक्स बरामद किए, जिनकी जुमला मालियत 4 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक हनमकुंडे का रहने वाला बी संदीप माजी में भी बाइक चुराने की 10 वारदातें अंजाम दे चुका है। सब इंस्पेक्टर एन शिवशंकर ने अपनी क्राइम टीम के इश्तराक से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। మా మలక్పేట క్రైమ్ టీం వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా మసారా మార్గ్ దగ్గర ఇక్కడ హనుమాన్ హాస్పిటల్లో పట్టుకోవడం జరిగింది। అతను బైక్కి ఎటువంటి నెంబర్ లేకుండా తిరుగుతూ జరిగింది। అతను తీసుకొచ్చి విచారిస్తే సుమారుగా అతను 8 వెహికల్స్ని ఒప్పుకున్నాడు। అతని పేరు బి సందీప్,
అతను హన్మకొండ అతను ఇంత ముందు కూడా ఇక్కడ హన్మకొండ వరంగల్లో 10 కేసులు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు. అతను మొత్తం పూర్తి విచారిస్తే 8 కేసుల్లో ఆల్రెడీ 8 కేసులు అయినాయి ఎఫ్ఐఆర్లు. అందులో హైదరాబాద్ సిటీలో 6 కేసులు అయినాయి, బయట రాచకొండలో 1, వరంగల్లో 8 కేసులు అయినాయి. మా హైదరాబాద్ సిటీలో వచ్చేసి మా దగ్గర మలక్పేట 1 కేసు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 1 కేసు, మారేడుపల్లిలో 3 కేసులు, మాదన్నపేట 1 కేసు, రాచకొండలో ఆలేరులో 1 కేసు, వరంగల్ నర్సంపేటలో 1 కేసు, మొత్తం 8 కేసులు నమోదైన అతని మీద. ఆ 8 కేసుల్లో కూడా అన్ని 2 వీలర్స్ తప్పలే. ఆ 2 వీలర్స్ 8 కేసులకు సంబంధించిన 8 వెహికల్స్ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది అతని దగ్గర నుంచి. ఇతని వెహికల్స్ అన్నింటినీ దొంగతనం చేసి అక్కడ గట్ కేసుల్లో అమ్ముకుందాం ఉద్దేశం దాచినట్టు చెప్తున్నాడు అతను. ఇది పూర్తిగా ఇంట్రాగేట్ చేస్తున్నాము. ప్రస్తుతానికి 8 వెహికల్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది అతని దగ్గర నుంచి. అతను కోర్టుకు పంపించి కస్టడీ చేసి పూర్తి విచారణ అతని మీద చేపడుతున్నాం. అతను ప్రస్తుతానికి చదువుకున్నాడు, చదువు ఆపేసిండు. అతను సుమారుగా 17 సంవత్సరాల మైనర్ అతను, చదువు ఏం లేదు. అతను కొంచెం ముందు కేసెస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అతను పూర్తిగా ఇంకా విచారణ చేస్తున్నాం అతని మీద. 2 వీలర్స్. हैदराबाद के ऑटो रिंग रोड पर मर्सिडीज बेंज कार में कल खुद को गोली मार लेने वाला नौजवान आज इलाज के दौरान दवाखाने में जानबच न हो सका। ये वाकया कल दोपहर 3 बजे के करीब नारसंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया था। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने लाल रंग की मर्सिडीज बेंज कार में एक नौजवान को खून में लुथपुथ पाया था। कार में रिवाल्वर और सेलफोन भी था। पुलिस ने इस नौजवान को, जिसकी शिनाख्त फैजान अहमद की हैसियत से की गई और जो यूएस कंसल्टेंसी का मालिक बताया जाता है, शदीद जख्मी हालत में गच्चीबौली के केयर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया था। जिले खम्मम के पालूचा में बहन के साथ आशिकी करने पर एतराज करने वाले एक नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 20 साल मोहम्मद शकील ने शिवा रेड्डी को अपनी बहन से पेंगे बढ़ाने से रोका और कल शाम इन दोनों में बहस और तकरार भी हो गई, जिसके दौरान शिवा रेड्डी ने चाकू निकालकर शकील पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे उसकी बरसर मौका मौत हो गई। इंस्पेक्टर रमेश ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात शुरू कर दी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला हरियान पांड्या के कत्ल में मुलविस तमाम 12 अफराद को उम्र कैद की सजा बहाल कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा की ज़ेर क़यादत डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई सजा को जायज़ करार दिया। इन मुज़म्मिन में शार्प शूटर असगर अली के अलावा मोहम्मद रऊफ़, मोहम्मद अब्दुल परवेज़, अब्दुल क़य्यूम शेख, परवेज़ खां पठान, मोहम्मद फ़ारूक, शाहनवाज गांधी, कलीम अहमद, मोहम्मद रियाज सुरेशवाला, अनीस माचिसवाला, यूनुस शरेशवाला और मोहम्मद सैफुद्दीन शामिल हैं। गुजरात की हाईकोर्ट ने क़ब्ल-अज़ी इनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया था। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि हरियान पांड्या को, जो 2002 के फ़िरक़ावाराना फसादात के दौरान नरेंद्र मोदी की काबीना में वज़ीर दाखिला थे, मार्च 2003 में अहमदाबाद में उस वक्त गोली मार दी गई जबकि वो चहलकदमी कर रहे थे। उनकी नाश सड़क पर पाई गई थी। हरियान पांड्या के वालिद और बीवी ने कत्ल की इस थ्योरी को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर दाखिला का सियासी कत्ल किया गया। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इतवार को दिल्ली पहुंचेंगे। वो अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से मुलाकात करेंगे और हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान सिफारती व तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने जैसे उमूर पर बातचीत करेंगे।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।